Hello dear students, I am Ansar sir and we are studying in Ejaz Maths Academy. See, today we have to study perpendicular axis theorem. In the previous lecture, we saw applications of parallel axis theorem. Now we have to study perpendicular axis theorem and its applications also. So let us start. See, the derivation is like this. Perpendicular axis theorem. Here the three axes will be perpendicular to each other. Perpendicular axis theorem. This is an irregular shaped rigid body. Suppose this is an irregular shaped rigid body. And suppose this is the x-axis and this is the y-axis. लग रही नहीं है ना बॉडी. This is the x-axis. This is the y-axis. And we have z-axis. Okay, so waste of time. Consider a thin lamina. Lamina मतलब एक thin sheet. एक thin sheet है, उसमें this is, let us suppose this is point O और यहाँ से एक axis pass हो रही है, एक axis we have passed an axis through, we have passed an axis in the plane of the lamina. In the plane of the lamina यानी अगर वो lamina ऐसा है, अगर वो sheet ऐसी है तो ये axis भी उसके ऊपर सोई है. If the lamina is horizontal, the axis also is horizontal. X-axis is in the plane of the lamina. Y-axis is also in the plane of the lamina. ये lamina जो है, body जो है, sheet is horizontal. X-axis also is horizontal. Y-axis also is horizontal. And Z-axis is perpendicular to the plane of the lamina. Z-axis ऊपर जा रही है. This is the Z-axis. And this is Y-axis. And consider a particle of mass dm. Consider a particle of mass dm situated at point P. Do you remember? पुराने लेक्चर में भी हमने जब पैरेलल एक्सिस थ्योरम प्रूव किया था तो उस समय भी हमने क्या किया था, एक पार्टिकल लिया था और उसका छोटा सा मास लिया था dm, फिर उसको इंटीग्रेट कर लेते, टोटल मास कैपिटल M हो जाता था. तो अब देखो, the distance of this particle of mass dm from the y-axis will be equal to x. कोऑर्डिनेट कैसा होगा इसका, इसके अलाउंग में होगा, it will be x coordinate. And the distance of this particle of mass dm from the x-axis, इसका distance x-axis से कितना होगा, its distance from the x-axis will be y coordinate. Its distance will be y coordinate. This will be y. ठीक है, ये बात समझ गया. This is perpendicular. This is perpendicular. इसका मतलब क्या है, अब इसको थोड़ा इमेजिन करना है आपको, because I cannot draw a 3-dimensional diagram. एक शीट है, पतली सी थिन लैमिना है, थिन शीट है, उस पर ये x एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, x एक्सिस इज इन द प्लेन ऑफ द लैमिना, यानी x एक्सिस सोई हुई है, y एक्सिस भी सोई हुई है, बट इट इज x एक्सिस एंड y एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर.
their x axis and y axis are perpendicular to each other. x axis ऐसी है, लैमिना के ऊपर y axis ऐसी है, y axis also is in the same plane as that of the laminar sheet, y axis भी सोई हुई है, और जहाँ x और y axis मिलती है, जहाँ x और y axis दोनों मिलती है, वहां पर बीच में से z एक्सिस पास हो रही है, और z एक्सिस कैसी है, ये लैमिना में नीचे से आई, होल की, और होल करके लैमिना के ऊपर से निकल गई, ठीक है। z एक्सिस कट्स द लैमिना, z एक्सिस लैमिना में होल करके ऊपर जा रही, z एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द शीट, ठीक है, प्लेन ऑफ द लैमिना। अब चलो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। पहले लिखते हैं कंसीडर अ रिजिड बॉडी लैमिना, कंसीडर और रिजिड लैमिना। अगर कोई ये पूछे कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो बोलना दिस लॉ इज ओनली फॉर, दिस थ्योरम इज ओनली फॉर थिन शीट्स। लैमिना, लैमिना यानी वेरी थिन शीट। कंसीडर अ रिजिड लैमिना ऑफ मास m, वैसे उसका काम ही नहीं है मास m का। फिर उसके बाद let us consider an axis, let us consider x axis passing through point O, passing through point O in the same plane as that of the लैमिना। यानी लैमिना हॉरिजॉन्टल है तो x एक्सिस भी हॉरिजॉन्टल है, एंड कंसीडर y axis perpendicular to x axis and passing through point O, and y axis also is in the, y axis also is in the same plane as that of the लैमिना। वैसे लैमिना का मतलब लेयर होता है, थिन शीट। एक्स एक्सिस ये वाली एक एक्सिस है ओ एक्स, ठीक है, एक्स एक्सिस जिसको हम बोल रहे हैं वो क्या है, ओ एक्स है, और वाई एक्सिस जिसको बोल रहे हैं वो क्या है, ओ वाई है। ये लिख दिया आपने, कंसीडर अ रिजिड लैमिना ऑफ मास m, लेट अस कंसीडर x एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O इन द सेम प्लेन, and consider y axis perpendicular to x axis and passing through point O, and y axis is also in the same plane। चलो जम रहा है, अपने शब्दों में हम इसको लपेट देंगे। अब उसके बाद क्या करते हैं, z एक्सिस के बारे में बोलते हैं। नाउ कंसीडर, नाउ इमेजिन बोलते कि कंसीडर बोलते हैं। नाउ कंसीडर z एक्सिस पासिंग थ्रू थोड़ा इंक भर देता हूँ, रुक जाओ, वीडियो पॉज कर देते हैं। नाउ कंसीडर z एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O, passing through point O and perpendicular to x axis and y axis, and also perpendicular to the plane of the lamina, plane of the lamina। मीनिंग समझ रहे हो, x एक्सिस को भी परपेंडिकुलर है वो,
वाई एक्सिस को भी परपेंडिकुलर है और लेमिना के अंदर से लेमिना के लेयर को परपेंडिकुलर हुई, यानी लेमिना हॉरिजॉन्टल और एक्सिस वर्टिकल है। कौन सी एक्सिस वर्टिकल है? जेड वाली एक्सिस वर्टिकल है। ठीक है, अब चलो उसके आगे का लिखते हैं। कंसीडर एन इनफाइनाइटेसिमल का मतलब क्या होता? वेरी स्मॉल। कंसीडर एन इनफाइनाइटेसिमल एलिमेंट, पार्टिकल, भारी वर्ड है, इनफाइनाइटेसिमल पार्टिकल ऑफ मास dm situated at point P as shown in the diagram. And the particle of mass dm is at a distance of x from y axis, and at a distance of y from x axis, and at a distance of z from z axis। z एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है? तो z एक्सिस से इसका डिस्टेंस है z। ये इसमें इमेजिन करना है हमको। ऐसी एक प्लेट है, शीट है, उस शीट में यहाँ एक चींटी बैठी हुई है, शीट पर एक चींटी बैठी है, उसका मास है dm और वो यहाँ पर है। ठीक है, एक्चुअली चींटी नहीं बैठी है, ये वो शीट का ही मास है, शीट का एक छोटा सा टुकड़ा है, उसका मास dm है। ठीक है, उसके मास का इंटीग्रेशन करेंगे हम तो पूरी शीट का मास बन जाएगा। चलो ठीक है, नोट डाउन कर लो, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो यहाँ तक, फिर आगे का डेरिवेशन लिखता हूं मैं। वीडियो पॉज करके इतना नोट बना लो, फिर आगे का डेरिवेशन लिखता हूं, ये मिटा रहा हूं मैं। हाँ, सी डेरिवेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिंगल पार्टिकल ऑफ मास dm about an axis passing along OX, यानी along x axis is equal to कितना रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर x एक्सिस बन जाती है, इफ x एक्सिस बिकम्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर x एक्सिस को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन समझ लेते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा बॉडी का? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा? मास इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी मास ऑफ द पार्टिकल इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस स्क्वायर यानी ये y स्क्वायर हो जाएगा, dm इनटू y स्क्वायर। अब मैं फिर से लिख रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंटायर लैमिना, ऐसे अपन ने पैरेलल एक्सिस थ्योरम में भी किए थे। एंटायर लैमिना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंटायर बॉडी का है, तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर लेंगे इसका। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंटायर लैमिना अबाउट एन एक्सिस पासिंग अलोंग एक्स एक्सिस। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्स एक्सिस से पास हो रही तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे बताएंगे अपन? आई एक्स से बताएंगे। और वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? इंटीग्रेशन ऑफ मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस।
dm मास इंटू वो पार्टिकल का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, y है, तो डिस्टेंस स्क्वायर यानी y स्क्वायर इंटू मास, एक पार्टिकल का क्या है m1r1 स्क्वायर, खत्म। अब देखो दूसरा, ये हो गया। अब यहां से सेकंड चालू करेंगे अपन, यहाँ पे ऐसी कहानी फिर से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिंगल पार्टिकल ऑफ मास dm about an axis passing along y axis सिंगल पार्टिकल का, तो क्या होगा मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, और y एक्सिस अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन y बन जाती है तो वो पार्टिकल का डिस्टेंस है y एक्सिस से कितना है, x है, डिस्टेंस इज x, तो हो जाएगा मास ऑफ द पार्टिकल इंटू x स्क्वायर यानी डिस्टेंस स्क्वायर। फिर लिखेंगे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंटायर बॉडी यानी entire lamina if the axis passes along y axis, तो उसको कैसे बताएंगे अपन, आई वाई से बताएंगे, इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इधर का हो गया होगा, आपको मिटा देता हूं मैं, वीडियो पॉज करके नोट कर लो, ये भी मिटा देता हूं मैं। थर्ड, moment of inertia of single particle of mass dm about an axis passing along z axis is equal to mass into distance square, और z एक्सिस से वो पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है, z एक्सिस से वो पार्टिकल का डिस्टेंस है z, है ना। अच्छा इमेजिन करना है कि ये z एक्सिस पास हो रही है और ये पार्टिकल यहाँ रखा है, तो z एक्सिस से उसका ये ऐसा डिस्टेंस, ठीक है, z एक्सिस से ऐसा डिस्टेंस उसका इमेजिन करना, ये पार्टिकल और वो z एक्सिस है आमने सामने। तो अब पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमको, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंटायर लैमिना if the axis passes along, लिखेंगे along z axis, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ऐसे बताएंगे अपन iz। व्हाट इज iz? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन passes through z axis, so iz is equal to क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल into square of its distance from the axis of rotation, mass into distance square from the axis of rotation, ये हो गया इंटीग्रल ऑफ dm into z स्क्वायर। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, तो क्या मिलेगा, LHS से LHS, RHS से RHS, Ix प्लस Iy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ix से क्या है, इंटीग्रल ऑफ dm इंटू वाई स्क्वायर प्लस RHS वो दूसरा वाला क्या है, Iy वाला क्या है, इंटीग्रल ऑफ dm इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। कॉमन क्या निकलता, इंटीग्रेशन का साइन, और ये होगा वाई स्क्वायर, ये होगा एक्स स्क्वायर, और इधर क्या निकलता dm। अब ये चीज देखो, सी हियर, ये y है, ये x है, तो ये भी क्या होगा, x होगा। ये y, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ जेड स्क्वायर dm, ऐसा हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ जेड स्क्वायर dm। या एक काम करो, dm इधर नहीं रखना तो इधर ही रहने दो,
इंटीग्रल ऑफ डी एम इंटू जेड स्क्वायर, ऐसा रख दो चलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इंटीग्रल ऑफ डी एम इंटू जेड स्क्वायर, बट व्हाट इज दिस, इट इज आई जेड फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या बता रहा है, इंटीग्रल ऑफ डी एम इंटू जेड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, आई जेड। तो इसका मतलब क्या हुआ, आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड, हो गया, हेंस प्रूव्ड। ये है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। आप बोलेंगे इसमें क्या है, आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई प्लस आई जेड, कौन सी बड़ी बात है, क्या हो गया इसमें। तो मैं समझाता हूँ, आई जेड, अब इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, तो पहले ये नोट कर लो, वीडियो पॉज करके ये नोट कर लो, फिर मैं इसका स्टेटमेंट लिख के देता हूँ आपको, और फिर इसके एग्जांपल्स भी बताता हूँ कि ये लॉ कैसे लगाना, ठीक है। पहले छपाई कर लो, वीडियो पॉज करो और लिख लो जल्दी से। Statement of perpendicular axis theorem. जो चीज नहीं समझी, जहां डाउट लगा, बिंदास में पूछने का अपन को। स्टेटमेंट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, स्टेटमेंट देखो क्या बोलता है, कैसे शब्दों में लिखो इसको। Moment of inertia of a body about a perpendicular axis passing through the lamina. Moment of inertia of a thin lamina, about an axis perpendicular to the lamina। ये z एक्सिस की बात चल रही है, perpendicular to the lamina about an axis लिखे ना अपने, about an axis, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है, I z perpendicular to the lamina is equal to the sum of Ix plus Iy is equal to the sum of moments of inertia of the lamina। अपने शब्दों में लपेटने दो थोड़ा समझ के। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन लैमिना अबाउट एन एक्सिस, ऊपर से जा रही है, इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस, अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस। अपने को मालूम कौन से एक्सिस है, कौन से वाले हैं, आई एक्स एंड आई वाई। about two perpendicular axes in the plane of the lamina, in the same plane as that of the lamina, and concurrent with the IZ perpendicular axis कर देंगे, concurrent with the axis perpendicular to the lamina। ये मैंने अपने शब्दों में बनाया, करेक्ट है, नो डाउट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन लैमिना यानी IZ perpendicular to the lamina is equal to the sum of moments of inertia of the lamina about two perpendicular axes Ix and Iy in the same plane as that of the lamina and concurrent with the axis which is perpendicular to the lamina यानी IZ, concurrent with IZ। चलो ये होगा इसका स्टेटमेंट, नोट कर लो, अपने शब्दों में बनाने का बिल्कुल घबराने का नहीं।
अब इसके एप्लीकेशंस, अब इसके एप्स क्या है वो देखते हैं अपन। लिख लिए। मुझे रिंग चूड़ी कड़ा तो लाना ही भूल गया मैं। चूड़ी कड़ा, चूड़ी कड़ा, चूड़ी कड़ा, गोल चीज नहीं है यहाँ पे। ठीक है, डायग्राम देखो। ये डिस्क है, कहानी डिस्क से शुरू करते हैं। ये डिस्क है और एंड इफ देयर इज एन एक्सिस लाइक दिस, और इस एक्सिस को अगर मैं आईसी बोलूं जो कि आईजेड का काम कर रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? याद करे या नहीं करे पहले मुझे ये बताओ। ये याद करे कि नहीं? याद करना है, बिल्कुल बहुत काम पड़ता है इसका। डिस्क ऐसा है हॉरिजॉन्टल, एक्सिस इज परपेंडिकुलर, आईजेड कैसी है? परपेंडिकुलर, और कहां से जा रही? सेंटर ऑफ मास से जा रही डिस्क के। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा डिस्क का? इट विल बी mr²/2। मैंने समझाया था डिस्क यानी सुदर्शन चक्र, और इससे क्या करते? राक्षस का दो भाग में इसका विभाजन कर देते। हम क्या करते? वो सुदर्शन चक्र से क्या करते? ऐसे सुदर्शन चक्र आता है, यहाँ से काट देता विलन को, राक्षस को, दो भाग हो जाते। तो मिस्टर को हाफ में डिवाइड करना है, मिस्टर के दो टुकड़े कर देना, हाफ हाफ, तो ये डिस्क यूज में आता है। कैसे भी कुछ भी बनाओ, याद रखो सिर्फ बस आईजेड यानी आईसी इज इक्वल टू mr²/2। अब अगर एक ऐसी एक्सिस है ऐसी वाली, इस एक्सिस को मैं बोलता हूं आई एक्स, और एक एक्सिस ऐसी है डायमीटर पर आई वाई, तो फाइंड आई एक्स फाइंड करो। आई एक्स की वैल्यू कितनी होगी? तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, बाय परपेंडिकुलर। अच्छा, यहाँ नाम लिख दूं क्या मैं? आई जेड कैसा है? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लेमिना, और आई वाई एंड आई एक्स कैसे है? इन द सेम प्लेन ऑफ लेमिना, सेम प्लेन ऑफ लेमिना। तो थ्योरम क्या लिखेंगे? आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। बट व्हाट इज आई एक्स? आई डायमीटर, आई डायमीटर प्लस दिस इज आई डायमीटर। अब बोलिए क्या हो गया सर? ये देखो ना, ऐसा नहीं लग रहा है डायमीटर जैसी दिख रही करके? अलोंग द डायमीटर आई एक्स इज इक्वल टू आई डी का मतलब क्या है? आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू आई डी का मतलब है एक्सिस इज इन द इज एक्सिस इज अलोंग द डायमीटर, डायमीटर की जैसी जा रही हो, एंड इन द सेम प्लेन एज द लेमिना। लेमिना के सेम प्लेन में मतलब ऐसा डिस्क सोया हुआ, तो आई एक्स भी सोई हुई है और आई वाई भी सोई हुई है, लेकिन जितनी आई एक्स रहेंगी उतनी आई वाई रहेंगी। क्यों? क्योंकि आई एक्स भी डायमीटर की तरह जा रही है सीधी, आई वाई भी डायमीटर की तरह जा रही है, तो दोनों की वैल्यू वैसे भी इक्वल रहेंगी। तो आई जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई जेड इज इक्वल टू 2 टाइम्स आई डायमीटर, और फिर उसके बाद आई डायमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई जेड अपॉन 2 इज इक्वल टू आई डायमीटर। तो आई जेड कितना है? mr²/2, और ये अपना 2 दूसरा, तो ये हो जाएगा आई डी। आई डायमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? mr²/4, यानी आई एक्स इज इक्वल टू mr²/4 हो जाएगा, एंड आई वाई इज इक्वल टू भी mr²/4 हो जाएगा। अब मैं आपको क्या समझाऊं, यहाँ चूड़ी कड़ा कुछ भी नहीं है मेरे पास बोल समझाने के लिए, वैसे भी नहीं जेब में फीस नहीं दे रहे आपको। जाओ कड़ा ढूंढ के लाता हूँ। सी, अब मैंने एक ये लेके आ गया चूड़ी मिल दो मुझे कड़ा, पाइप कर दो कटा हुआ। नाउ सी, मेरे पास जो है दिस इज अ रिंग, हॉलो रिंग, ठीक है, थिन यूनिफॉर्म रिंग है ये। अब इस रिंग की एक्सिस अगर ऐसी पास होती है बीच में से, सेंटर ऑफ मास
एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा? अगर ये नंबर 2, नंबर 1 क्या था? ये डिस्क था, नंबर 1 क्या था? डिस्क, डिस्क वॉज नंबर 1। अब यहां लिखता रिंग, RING रिंग, रिंग के लिए लिखता हूं, ठीक है। तो देखो रिंग के लिए एक्सिस अगर ऐसी पास हो रही, एक्सिस ऐसी पास हो रही, तो ये इसको क्या बोलते हैं अपन? आईसी, सेंटर ऑफ मास से जा रही है आईसी, और आईसी यानी किसका काम कर रही है? आईजेड का काम कर रही है, आईजेड। अब मुझे ये बताओ आपने याद करे या नहीं करे, अगर एक्सिस यहां से जा रही बीच में से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग कितना होता है? डायरेक्ट दिया आपने बुक में, डेरिवेशन भी उसका मेहनत ही करना है, आराम से बोल दो। तो इट शुड बी मिस्टर स्क्वायर। याद रखना डिस्क क्या काम में आता? सुदर्शन चक्र राक्षस के 2 टुकड़े, तो mr²/2 मिस्टर के 2 टुकड़े कर देता हूं मिस्टर के। और ये रिंग किसको पहनाते? तो रिंग मिस्टर को पहनाते, वैसे मिसेस को भी पहनाते, बट मिस्टर को पहनाते हैं, मिसेस को नहीं पहनाते, मिस को पहनाते हैं। तो IC इज इक्वल टू IZ इज इक्वल टू मिस्टर स्क्वायर। अगर एक्सिस यहां से पास हो रही होंगी तो ये एक्सिस कैसी है? द एक्सिस इज पैरेलल टू, द एक्सिस इज पैरेलल टू दिस गिवन एक्सिस। अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जा रही ब्लैक वाली बीच में से, ये बीच में से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रही और ये रेड वाली एक्सिस पास हो रही, तो ये दोनों एक्सिस कैसी है? पैरेलल। कौन सा थ्योरम लगेगा यहाँ पे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और यहाँ ये एक्सिस के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे पता करेंगे आप? IO प्लस महाराष्ट्र, IO इज इक्वल टू IC प्लस महाराष्ट्र स्क्वायर। अगर आपको ये वाला पता करना हो, ये वाली, तो इसका नाम क्या रहेगा? IO, और IO इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? IC प्लस महाराष्ट्र स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? IO इज इक्वल टू मिस्टर स्क्वायर प्लस m, व्हाट इज h? डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल एक्सिस, ये होगा r के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स मिस्टर स्क्वायर। यहां से एक्सिस पास किए तो बढ़ जाता मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब दूसरी बात ध्यान दो, अगर एक एक्सिस ऑलरेडी यहां से पास हो रही है, ये रिंग है, रिंग में से एक्सिस ऐसी पास हो रही, दिस इज IC, ये वाली IC IZ है, ठीक है। अब एक्सिस अगर ऐसी पास हो रही होगी तो डायमीटर में से, यानी ये डायमीटर में से एक्सिस ऐसी पास हो रही होगी, तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा? तो देखो कैसे पता करेंगे। यहाँ पे क्या लगा हमने? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा है। और अगर रिंग ऐसी है और एक्सिस ऐसी जा रही, तो इसका नाम क्या रखेंगे? IX, और ये वाली एक्सिस का नाम क्या रखेंगे? IY, और जो एक्सिस ऊपर जा रही है उसका नाम रहेगा IZ, IC और उसी को बोलते हैं IZ, और वो क्या रहती? मिस्टर स्क्वायर। तो हम यहाँ कौन सा थ्योरम लगाएंगे? बताओ ये IC, IZ और IX और Y में क्या रिलेशन है? IX IC को क्या है? परपेंडिकुलर है, तो यहाँ क्या लगाएंगे? बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या बोलता परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम? बोलता IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY, IX प्लस IY। जितना IX रहेगा उतना IY रहेगा, क्योंकि दोनों का ऐसे डायमीटर है, तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे? IZ इज इक्वल टू I डायमीटर प्लस I डायमीटर, ठीक है। क्योंकि ये डायमीटर की जैसी जा रही ना एक्सिस, एक्स एक्सिस डायमीटर के अलावा है, वाई एक्सिस भी डायमीटर के अलावा है, ऐसी एक्सिस रखेंगे। देखो ध्यान से समझो, अगर एक्सिस ऐसी रखेंगे तो जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, अगर एक्सिस ऐसी रखेंगे तो भी उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। क्यों? क्योंकि ये भी डायमीटर है और ये भी डायमीटर है और ये भी डायमीटर है और ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है। तो किसी भी डायमीटर के अलाउंग रखेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी द सेम। तो जितना IX रहेगा उतना ही IY रहेगा, और दोनों को ID बोल देते अपन। IX इज इक्वल टू IY साइड में लिख देंगे, जेवढा IX असेल तेवढाच
आय वाय असेल आणि दोन्ही आय डीच्या बरोबर असेल, झालं आपलं काम. आता काय आय झेड बरोबर आय डी आणि आय डी अधिक आय डी म्हणजे 2ID. आय डी म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉंग द डायमीटर. आता आय झेड हे बघा, झेड आणि 2 वेगळे आहे. आय झेड भागेला 2 बरोबर आय डी. आय झेड अपॉन 2 इज इक्वल टू आय डी. सो आय डी विल बी आई जेड अपॉन 2. आई जेड कितना है mr² बाय 2. देवरफॉर आई एक्स जितना रहेगा उतना ही आई वाई रहेगा, और रिंग के लिए दोनों रहेंगे mr² बाय 2. ये ऐसी बात है. आपको लगती है मजाक. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर एक्सिस ऐसे गई तो कितना mr², टेंजेंट है बाजू से गई तो 2mr², ऐसे गई तो mr² बाय 2. हाँ, इधर से जाएंगे एक्सिस तो देखो कैसे बताता हूँ. यहाँ आईडी का मतलब लिख दूं क्या है. आईडी का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इफ एक्सिस पासेस along diameter. Axis passes along diameter. अब देखो और एक केस ये है. दिस इज आई एक्स. ये एक्सिस का नाम क्या है आई एक्स, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स में कितना रहता बताओ जल्दी. आई एक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ कितना रहता. mr² बाय 2. अभी लाइन डिराइव करके आई जेड पर कितना रहता mr², तो आई एक्स पर कितना रहेगा उसका हाफ. हमेशा याद रखना जितना वर्टिकल एक्सिस पर रहता हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे उसका हाफ रहता है. अब अगर मैं एक्सिस ऐसी पास कर दूं तो, और इसको नाम मैं आईओ देता. व्हाट इज आईओ. आईओ इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग if the axis is tangential and parallel to the diameter and is in the same plane as that of द रिंग. रिंग का मतलब, इसका मतलब क्या है ये देखो. इसको क्या बोलेंगे ऊपर एक्सिस गई तो आई जेड, इसको क्या बोलेंगे आई डी, और ये आई डी को पैरेलल बना रहा है. ये देखो ये टेंजेंट है. टेंजेंट दो टाइप्स की बन सकती है. या तो कोई ऐसी भी टेंजेंट बन सकती जो आई जेड को पैरेलल है, और ये टेंजेंट ऐसी भी बन सकती जो आई डी को पैरेलल है. बात समझ रहे हो. ये किसको पैरेलल है, ये एक्सिस किसको पैरेलल है आई डी को पैरेलल है. और ऐसे ये ब्लैक वाली एक्सिस ऐसे रखूंगा तो किसको पैरेलल रहेंगी, ये आई जेड को पैरेलल रहेंगे. ऐसा आई जेड रहेगा बीच में से और ये उसको पैरेलल रहेंगे ऐसे. ये भी टेंजेंट है. ब्लैक वाला पेन देखो ये टेंजेंट है, और सोया हुआ है तो भी टेंजेंट है. ये सोया हुआ है तो सेम प्लेन में है, रिंग के प्लेन में है, और ये रिंग को परपेंडिकुलर है. तो इससे पता चला कि टेंजेंट टू द रिंग कैन बी ऑफ टू टाइप्स. टेंजेंट कैन बी परपेंडिकुलर टू द रिंग एंड टेंजेंट कैन बी पैरेलल टू द रिंग. समझ के, पैरेलल यानी इन द सेम प्लेन ऑफ द रिंग. तो अब इस पे क्या करेंगे, यहां लगाएंगे बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम. बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम. पैरेलल एक्सिस थ्योरम बताओ. पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्यों लगा है, क्योंकि ये दोनों कैसे एक्सिस पैरेलल है. आई एक्स और आईओ कैसे है पैरेलल है. आईओ किसको बोले हमने, ये हॉरिजॉन्टल वाली एक्सिस को बोले पैरेलल वाली. ठीक है, तो क्या हो जाएगा महाराष्ट्र. आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस महाराष्ट्र लिखते थे अपन. अब यहां क्या लिखेंगे आई एक्स प्लस महाराष्ट्र स्क्वायर. बताओ आई एक्स प्लस महाराष्ट्र स्क्वायर क्यों लिखे, क्योंकि ये पैरेलल किसको है आईसी को थोड़ी पैरेलल है. ये आई एक्स को पैरेलल है ना आई ओ, तो इसलिए हम यहाँ आई एक्स लिखे. और ये हो जाएगा आई ओ इज इक्वल टू
आई एक्स की जगह बताओ क्या लिखेंगे, आई एक्स की जगह लिखेंगे एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर, क्योंकि ये देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है h, और h इज इक्वल टू आर, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, तो आई ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर एंड फुल एम आर स्क्वायर, मतलब 3/2 एम आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है या चक्कर आ रहे हैं? बस एक होमवर्क दे देता हूं और केस खत्म कर देता हूं। डिस्क का होमवर्क देता हूं, डिस्क का रेड पेन से होमवर्क देता हूं। डिस्क, ये डिस्क है, ये डिस्क है, एक्सिस का कलर चेंज करना पड़ेगा, ये डिस्क है और डिस्क में से ये एक्सिस जा रही है इसी, इसका नाम है आई एक्स, और ये एक्सिस जा रही है इसी, इसका नाम है आई ओ। व्हाट इज आई ओ? फिर से वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, ये दिखता नहीं ना आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस passing नहीं, about an axis tangential and parallel to the plane of the lamina। चलो ये फाइंड करना है, आई ओ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जब वीडियो देखेंगे तब तुरंत मुझे आंसर भेजना। आई एक्स का कितना लिखूं मैं, आई एक्स कितना रहता है इसके लिए, एम आर स्क्वायर बाय 4, ये कितना रहता है इसके लिए, एम आर स्क्वायर बाय 4। चलो हैट कहाँ का पेन की जगह क्या दिस इज इट। चलो ठीक है, तो हैव अ वेरी नाइस टाइम विंडोज में सॉल्व करने का, और जहाँ डाउट डिफिकल्टी लगती है पूछने का, ठीक है। हैव अ नाइस टाइम।